हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए गिवन सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स phi इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू ba cos of theta, where b is the magnetic field strength, a area of the surface, and theta be the angle between normal to area and field direction. Special cases, if theta equal to 0 degree, तो phi कितना हो जाएगा b into a, यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। सेकंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी phi इक्वल टू ba cos ऑफ 0, यानी फ्लक्स आपका 0 होगा, यानी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through the given surface. In case of a coil of area A having n turns, तो फ्लक्स कितना होगा phi इक्वल टू NBA cos of theta. Magnetic flux is a scalar quantity. Its value may be positive, negative and zero, and dimension formula of magnetic flux is m1 l2 t minus 2 a minus 1. याद करने का तरीका, m1 l2 t minus 2 किसके बराबर है, एनर्जी, यानी एनर्जी अपॉन करंट। एनर्जी m1 l2 t minus 2, करंट का मतलब है a, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, तो आप बोलोगे एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज द phenomenon of generating EMF by changing the number of magnetic lines of force, that is magnetic flux, associated with the circuit. The EMF so generated known as induced EMF. If circuit is closed, the current which flow it is the current will flow in it due to induced EMF is known as induced current के बराबर होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि when a current carrying coil placed in uniform magnetic field, the magnetic flux linked with the coil change, and induced EMF or induced current produced in the coil. Next topic, Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday first law, it states that whenever the magnetic flux linked with the coil change and induced EMF produced in the coil. Faraday's second law, it states that the magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil. Mathematically, induced EMF is given by E equal to minus d phi upon dt. Negative signs show that change in flux and induced EMF both are in opposite direction. नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लेंज लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, यानी जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसी का ही अपोज करता है, उसे हम लेंज लॉ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट्स द राइट हैंड in such a way that the first finger, central finger and thumb are mutually perpendicular to each other. The first finger gives the direction of magnetic field, the central finger gives the direction of induced EMF or induced current, and thumb gives the direction of motion, जिससे हम मदर मदर चाइल्ड के नाम से जानते हैं। मदर का मतलब है मोशन, मदर का मतलब एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब है चाइल्ड का मतलब है करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट। Applications of Lenz law. When north pole of a bar magnet is moved towards the coil, the current induced in the coil will be in anti-clockwise direction as shown in the figure. यानी जब नॉर्थ पोल को किसी भी कॉइल के नजदीक लेके जाते हैं तो वहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होता है,
और एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होने से कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल एक्वायर हो जाएगा। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल will be in clockwise direction as shown in the figure। लेंथ लॉ का मेन काम क्या है? अपोज करना। अगर नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक जा रहा है तो जाने से रोकेगा, मींस नॉर्थ पोल एक्वायर हो जाएगा। और नॉर्थ पोल बनने का मतलब है डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं लाइक दिस, तो वो उसको दूर नहीं जाने देगा, तो वहां पर साउथ पोल एक्वायर हो जाएगा और साउथ पोल से करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो। when a current carrying coil is moved towards the stationary coil, the direction of current induced in the stationary coil as shown in the figure, जैसे फिगर में दिखा रखा है। जब हम किसी एक कॉइल को दूसरी कॉइल के नजदीक लेके आएंगे तो उसके अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। अगर हम when the current carrying coil is moved away from the stationary coil, the direction of current induced in the stationary coil as shown in the figure। आप करंट की डायरेक्शन देख रहे हो, दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। व्हेन करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर AB इज इंक्रीज्ड, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमसे पूछा गया है कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है। ए टू बी और क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और थंब रूल लगाने से करंट आपका कहाँ जाएगा? हमारे पास ए टू बी इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। और डिक्रीज और लेंजला क्या करेगा? उसका अपोज करेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाएगा तो कहां ले जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो डायरेक्शन कैसी होगी? आपकी क्लॉकवाइज होगी। एक अगर आप उसको रटना भी चाहते हैं तो ध्यान रखें, करंट कहां जा रहा है कंडक्टर में? ए टू बी। और आपसे पूछा जाए कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, तो जो करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में है कैसे है वो? क्लॉकवाइज। तो उसके अंदर भी कैसी हो जाएगी? आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर करंट इन द कंडक्टर ए बी डिक्रीज, इंड्यूस करंट इन द लूप विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और कैसी होगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। व्हेन ए करंट कैरिंग rod of length L moved with velocity v perpendicular to a uniform magnetic field B, the induced EMF across its ends is किसके बराबर होगा? BLV। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब है लेंथ ऑफ रॉड, V वेलोसिटी ऑफ द रॉड। दिस EMF इज नोन एज मोशनल EMF होता है। If the rod makes an angle theta with the direction of field, the induced EMF is BLV sin of theta के बराबर होगा। Next, when a conducting rod of length L is rotating perpendicular to a uniform magnetic field B, then induced EMF between the ends of the rod is ये आपका equal to B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। जो ओमेगा आपको दिखाई दे रहा है इससे आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई इंटू न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। व्हेन ए कंडक्टिंग सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस r is rotating with a uniform angular velocity omega with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B, the induced EMF half of B r square omega। r का मतलब रेडियस ऑफ द डिस्क और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंडक्टर। एन इंडक्टर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इन यूजुअल प्रैक्टिस ए कॉइल और सोलेनॉइड इज ट्रीटेड एज इंडक्टर। द सिंबल ऑफ इंडक्टर इज, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। यानी एक कॉइल को हम क्या कहते हैं? कॉइल या सोलेनॉइड को हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं।
पहला टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द कॉइल। किसी भी कॉइल के अंदर करंट का बढ़ना या घटना उसका जो अपोज करता है उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल and phi with a negative flux linked with the coil, then phi is directly proportional to I। किसी कॉइल में जितना करंट बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट L, phi इक्वल टू Li। L को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। करंट की फॉर्म में लाएंगे तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी एंड डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T minus 2 A minus 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट, ये आपका एक डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, area cross section A, having n turns per unit length। When current I flowing through the solenoid, the magnetic field produced inside the coil is for mu naught Ni। n का मतलब number of turns per unit length। Magnetic flux linked with n turn of solenoid phi equal to NBA cos of 0, cos 0 यानी 1, NBA आ गया। phi की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम जानते हैं n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल। तो हम n की जगह लिख देंगे हम n इंटू एल, b की जगह रख देंगे म्यू नॉट n इंटू आई, और a का मतलब a। म्यू नॉट और सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। म्यू नॉट नेचर ऑफ द मटेरियल, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड के बराबर होगा। When a magnetic material of relative permeability mu r is filled inside the core of solenoid, the self inductance is increased to L equal to mu naught mu r n square L into A के बराबर होगा। Mutual induction, the phenomenon of induced EMF or induced current produced in the coil due to change in magnetic flux linked with the neighboring coil। जब किसी नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा दो कॉइल यूज की जाती है। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से दूसरी कॉइल के अंदर जो उसके नियर बाई है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, phi s इक्वल टू m इंटू आई पी। m का मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। The EMF induced in the stationary coil is given by ES equal to minus M DIP upon DT। M का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ M is Henry and dimension formula same as the self inductance M1 L2 T minus 2 और A minus 2 के बराबर होगा। Coefficient of coupling, coefficient of coupling of two coils, each a measured of the coupling between the two coils is given by K equal to M upon L1 L2 का under root, where L1 and L2 are coefficient of self induction of two coils or M be the coefficient of mutual induction of two coils. The coefficient of coupling is maximum when two coils are bound on each other on a soft iron core. Coefficient of coupling is also large when the two coils are placed as to have a common axis but less than
when they are wound on each other. Coefficient of coupling is minimum when two coils are placed such that their axes are perpendicular to each other. अगर दोनों के एक्सिस सेम है, कॉमन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा, और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिनिमम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह हमारे पास एक डेरिवेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स M equal to mu naught N1 N2 A upon L. Mu naught nature of material, N1 N2 number of turns in primary and secondary coil, A area of solenoid, and length of each solenoid. Combination of inductance, two inductors of self inductance L1 and L2 are kept so far apart that their mutual inductance is zero. These are connected in series, then the equivalent inductance is same as the resistance होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में होती है तो R1 प्लस R2, तो आपके पास इंडक्टेंस क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2। टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected in series and they have mutual inductance M, then the equivalent inductance of the combination L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M के बराबर होगा। इसके अंदर जो प्लस साइन है occurs if winding in the two coils are in the same sense, while minus sign occurs if winding are in opposite sense. Two inductors of self-inductance L1 L2 are connected in parallel, then equivalent inductance each 1 upon L equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, जिसे हम L equal to L1 L2 upon L1 plus L2 भी लिख सकते हैं। If we consider mutual inductance M of the two inductors, then L equal to L1 L2 minus M square upon L1 plus L2 plus minus 2M के बराबर होगा। Next topic, energy stored in an inductor. When a current I flowing through an inductor, the energy stored in it is given by U equal to half of L I square. The energy stored in an inductor in the form of magnetic energy. Next topic, AC generator. A generator induced electric energy from mechanical energy. यानी कि it is a device which convert mechanical energy into electrical energy, just the opposite of what a motor does. मोटर से हमेशा क्या रहेगा, opposite. An AC generator is based on the phenomenon of electromagnetic induction, which states that whenever the magnetic flux linked with the conductor change and induced EMF produced in the coil. ये इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होगा, E इक्वल टू एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, जिसे हम E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं, और ई नॉट का मतलब होता है एन ओमेगा बी ए, जिसको हम पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो आई इक्वल टू कितना होता है, ई अपॉन आर। ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई हो जाएगा ई नॉट बटे आर साइन ओमेगा टी, यानी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट का मतलब पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज की क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चनों से बनाए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट्स से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें 5 मार्क टॉपिक, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में जो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ।
in terms of magnetic field B, number of turns N of the coil of area A rotating with angular frequency omega, rotating with angular frequency omega. Show how an alternating EMF is generated by a loop of wire rotating in magnetic field. एक्चुअली यहाँ पे जो हमें करना है, सिंपल से उसका पहले सिमेट्रिक डायग्राम बना देना है, जिसमें उसके सभी पार्ट का नोमेनक्लेचर कर देना है, वर्किंग ऑफ टेन एक्सप्रेशन, उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, जो कि ई नोट साइन ओमेगा के टर्म में रहता है, ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी के टर्म में। और यहाँ पर हम लोग ई नोट को रिलेट करते हैं इसके सभी पैरामीटर से, बी, एन, ए, ओमेगा, ये सारे पैरामीटर से हम इसको लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 20 टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट its vertical diameter with angular speed 50 radian per second in uniform horizontal magnetic field this। ये इसी के रिजल्ट से आए हुए फॉर्मूले का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, जिसमें ई नॉट जिस टर्म से रिलेटेड है, एन, ए, ओमेगा और बी, इसकी वैल्यू पुट करके ये हम सिंपल से यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब जो इसमें टॉपिक है मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ रहता है, और हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से एवरेज का रिलेशन जानते हैं, जिसमें हम लोग पाई से डिवाइड करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं 2/पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया है, मैक्सिमम करंट इन द कॉइल आपसे पूछा गया है कि द कॉइल ऑफ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल एंड एवरेज पावर लॉस टू जूल हीटिंग। ये क्वेश्चन इसी तरीके से ही होता है, जिसमें हम लोग पहले आई इक्वल्स टू ई नॉट, जो कि हम लोगों ने एसी जनरेटर का ही फॉर्मूला यूज करके ई नॉट निकाला था, उसको आर से डिवाइड करके आई निकाल लेते हैं, और जूल हीटिंग इफेक्ट जो कि आई स्क्वायर आर टी रहता है, इसका यूज करके हम लोग हीटिंग इफेक्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को हमें डिफाइन कर देना है, और साथ में सेल्फ इंडक्शन को हमें डिफाइन कर देना है, और इसके एसआई यूनिट जो कि हेनरी के टर्म में आती है, हमें वो लिख देनी है। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फंक्शन और रेट ऑफ चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल इंडक्टर। इंडक्टर का को हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के टर्म में इसका ग्राफ बना के दिखा देना है। ये और ये क्वेश्चन सेम ही है, जिसमें पहला टर्म तो सेम ही है, दूसरे में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो कि हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, जो कि इंडक्टर में स्टोर एनर्जी रहती है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ड्राइव द एक्सप्रेशन for self-inductance long solenoid of cross-section area and length L having n turns per unit length। आप एरिया को जो चाहे वो कंसिडर कर सकते हैं, चाहे कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए। मैं यहाँ पे कैपिटल ए मेंशन कर दे, कैपिटल ए से आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। अब यहाँ पर हमें सेल्फ इंडक्टेंस जो कि एल के टर्म में रिलेशन आता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला निकालना होता है, और इसी फॉर्मूले से 1 मार्क से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, सिमिलर क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस की तरह। अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पर 2 कॉइलों के ऊपर बात होती है, 2 कोएक्सियल कॉइल हैं, उनके बीच आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और शो भी करना है जो एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे पर है और दूसरे का पहले पर है, ये दोनों सिमिलर होते हैं। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग सोलेनोइड, ये जो क्वेश्चन है, 15 टर्न्स लूप वायर दिस सेंटीमीटर
करंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, टाइम इंटरवल इन दिस। ये सेम क्वेश्चन जो है हमारा, ये एज इट इज क्वेश्चन जो कि सेम इसके फॉर्मूले पर आसानी से हो जाता। नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L ऑन टू स्मूथ पैरेलल वायर PM एंड QM। एक्चुअल में ये इस डायग्राम को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पर एक रॉड L है जिसकी लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितनी, L है। अगर हम इसको मूव करें तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन हमें एट द एंड इसकी डायरेक्शन बतानी रहती है। और इस डायरेक्शन का यूज़ करते हुए और इस पूरे डायग्राम का यूज़ करते हुए हमें कुछ फोर्स, EMF, करंट निकालना रहता है। उस करंट EMF और फोर्स का निकाल कर हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल आ जाते हैं। आप सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ conducting length, a conductor of length L is rotating about on its end at constant angular speed omega. One of its end at a constant angular speed omega in plane perpendicular to uniform magnetic field. B. Plot graph to show variation of EMF induced across the end of conductor with this. आपको इनको इसका ग्राफ बनाना है। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है जिसमें कोई रॉड है जो कि एक एंड से किसी मेटल के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है। इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाना पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, और फिर इसके मोशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर EMF का फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो कि हाफ और कुछ पैरामीटर पे डिपेंड करती है, और उस पैरामीटर का हम यूज़ करके डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक, लेंस लॉ। लेंस लॉ वर्ड पहले तो हमें स्टेट करना पड़ेगा कि लेंस लॉ क्या होता है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो करता है, जिसमें हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं, वो इसको अट्रैक्ट करने जब पास लेके जाते हैं तो रिपेल करता है जिससे वो इंड्यूस करंट बनाता है, और दूर लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है तो भी एक इंड्यूस ईएमएफ बनाता है। अब नया क्वेश्चन जो कि हमने क्वेश्चन नंबर बी नाम दिया है, यहाँ से ही पूछा जाता है, बताइए वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये हम बहुत सिंपल, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो कॉइल है अगर आप उसकी तरफ जाते हैं, आपके पास अगर मैग्नेट है जो कि नॉर्थ इधर साउथ, आप इसको मूव करवाते हैं तो उसको रिपेल करता है, और बल्कि आप इसकी तरफ अगर साउथ है और अगर आप इसको दूर लेके जाते हैं तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए फिर नॉर्थ और बनाता है ताकि ये इसको रोक सके। इसी प्रोसेस के दौरान ये करंट इंड्यूस करता है और वही हमें इसकी डायरेक्शन बताता है। अगर आप चाहें तो लेंजिस लॉ भी कर सकते हैं। लेंजिस लॉ कभी कभार 2-3 साल में एक बार पूछ लेता है कि आप उसकी स्टेटमेंट लिख दें। लेकिन हाँ, मेन क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एक यहाँ से हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, चाहे आपका एक लेंजिस लॉ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है जो कि डायरेक्शन के ऊपर पूछ लिया जाता है। सेकंड, यहाँ पर जो भी हमारा ये AC जनरेटर का एक क्वेश्चन नंबर बी है, इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। साथ में सेल्फ इंडक्टेंस का भी SI यूनिट पूछ लेता है, या फिर यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट या इसकी EMF का फॉर्मूला पूछ लेता है, और पूछ लेता है वो किन-किन पैरामीटरों पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके इस यूनिट से इस टॉपिक पे सारे आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।